The Punjab and Haryana High Court gave a significant ruling concerning Haryana today. The High Court has directed the Speaker of Haryana Vidhan Sabha, Kuldeep Sharma, to decide on the petitions filed by Haryana Janhit Congress President Kuldeep Bishnoi by April 30th. Bishnoi had filed a petition seeking disqualification of 5 of his party MLAs who had defected to the Congress in November 2009. In a significant ruling, the High Court said that these 5 MLAs would neither be deemed to be in the Congress nor in the HJC till the verdict is pronounced. The High Court has also ruled that these MLAs will till then be seated separately in the Assembly and they cannot ever hold any office. But what does this ruling really mean for the ruling Bhupinder Singh Hooda government? Does it pose any challenge? Shamsher Chalde tries to find out. The Punjab and Haryana High Court ruling has put the 5 MLAs who won on the Haryana Janhit Congress ticket and joined the Congress in a spot. While the fact that these 5 have been unattached from Congress would not really bother the Bhupinder Singh Hooda government, the 5 will also now not be able to hold any office. That effectively means that 4 of these 5 will have to give up their ministerial berths. Vinod Bhyana is Chief Parliamentary Secretary and so is Zileram Sharma. Rao Narendra is Minister for Medical Education and Health, while Satpal Sangwan is also a Cabinet Minister. आज हरियाणा हाई कोर्ट के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस MM कुमार और जस्टिस गुरदेव सिंह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष की वो अपीलें खारिज कर दी हैं। 5 विधायकों की अपील भी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है स्पीकर हरियाणा विधानसभा को कि अब वो 30 अप्रैल तक इन जो अयोग्यता वाली याचिकाएं हैं उन पर अपना निर्णय दे। The High Court has also dismissed the appeal made by the Speaker of the Haryana Assembly against the earlier High Court orders. The court had asked that the case be decided within the stipulated time period. Now, since that did not happen, the court intervened and unattached the 5 MLAs from Congress. As soon as the ruling came on Tuesday afternoon, the opposition INLD and BJP HJC combined started a clamour for the resignation of the Hooda government. हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये 5 विधायक अब ना तो कांग्रेस के सदस्य माने जाएंगे और ना ही हजका के माने जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 46 से कम होकर अब 41 रह गई है और ये सरकार अल्पमत में आ गई है। In the post-April 30 scenario, even if these 5 MLAs are disqualified and the strength of the state assembly is thus reduced to 85, the Congress would still have the support of 49 MLAs, 6 more than the magical number of 43. The Congress has 41 MLAs of its own and is backed by 7 independents and 1 BSP MLA. All the independents are already well entrenched in the ministerial berths or that of the parliamentary secretaries and thus have little scope to do a U-turn. It's a jolt for the Haryana Janhit Congress MLAs and so is it for the Congress. However, despite the court orders, Congress can have the privilege of power till April last when the decision on the matter comes. With camera person Kuljinder Sood, Shamsher Chandel, Day Night News, Chandigarh. To discuss the impact of this ruling, we are joined in the studios for a discussion by Satyapal Jain, lawyer for petitioner Kuldeep Bishnoi and veteran journalist Chandar Trikha. आपको स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। सत्यपाल जैन जी, आपसे शुरू करूंगी। आज के जो कोर्ट का ये फैसला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस के लिए आप इसको एक सेटबैक मानते हैं और एचजेसी के लिए जीत, या अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा? देखिए, आज का निर्णय कांग्रेस के लिए नैतिक तौर पर भी कानूनी तौर पर भी एक बहुत बड़ा झटका है। 2009 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें हजका के 6 विधायक जीत कर आए थे। उनमें से 5 विधायकों ने 9 नवंबर को और 1 विधायक ने 10 नवंबर को स्पीकर को एक याचिका दी और ये कहा कि हमारी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। उसी दिन स्पीकर महोदय ने उस विलय को स्वीकार करके इनको कांग्रेस के सदस्य मान लिया जी। उसके लगभग 1 महीने बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी याचिका डाली कि ये वास्तव में विलय नहीं है, ये दल बदल है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। स्पीकर ने लंबे समय तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने हाईकोर्ट में रिट डाली और आज के ही दिन 20 दिसंबर को ही माननीय जस्टिस अजय तिवारी ने स्पीकर को निर्देश दिया कि आप इसका निर्णय 4 महीने के अंदर करें। उसके खिलाफ स्पीकर भी और 5 विधायक भी अपील में आए। आज वो अपीलें खारिज हो गई हैं। आप इस निर्णय के 3 पक्ष हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पीकर महोदय 30 अप्रैल तक इसका निर्णय करें जी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये निर्णय नहीं होगा
तब तक इनमें से कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी ना मंत्री, ना संसदीय सचिव, ना कोई और पद ग्रहण कर सकता है। तीसरा उन्होंने कहा है कि ये उस समय तक अनअटैच्ड मेंबर माने जाएंगे, इनका ब्लॉक अलग होगा, सीटें 5 अलग होंगी और इसके बारे में इनको अटेंड करने के अलावा और कोई पर्पस के लिए अनअटैच्ड मेंबर नहीं माना जाएगा। ये अब हरियाणा कैबिनेट के मेंबर हैं तो ये अब जो मंत्री पदों पर ये कायम नहीं रह सकते हैं। ना मंत्री, ना सचिव, ना संसदीय सचिव, कोई भी ऑफिस। और मैं आपकी जानकारी में ला दूं, जब ये 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था तो संभवतः संविधान की धारा 371 है शायद, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जब तक वो दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आ जाता तब तक वो किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। यह प्रावधान संविधान में है। तो हाईकोर्ट ने पैराग्राफ 26 में, जहां मेरी कंटेंशन रिकॉर्ड की है, वहां यह लिखा कि हमारा मत है कि अगर स्पीकर किसी ऐसी याचिका पर निर्णय नहीं करता तो हाईकोर्ट स्वयं वो निर्णय कर सकता है। राजेंद्र सिंह राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं उनको डिस्क्वालीफाई किया था, वो जजमेंट मैंने साइट की है। तो मैं समझता हूं कि आज का निर्णय नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से इन 5 डिफेक्टर एमएलए के लिए भी, हुड्डा सरकार के लिए भी, और बहुत बड़ा ये उनके लिए झटका है। कांग्रेस अल्पमत में आ गई है, सरकार भले ही बहुमत में हो। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या आज 41 रह गई है और वो निर्दलीय के सहारे जुटी है। मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो हाईकोर्ट ने कहा है कि दे शुड बी डीम्ड टू बी अनअटैच्ड मेंबर्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग द हाउस एंड फॉर नो अदर पर्पस, मुझे लगता है कानूनी दृष्टि से एक ही निष्कर्ष है कि ये हाउस अटेंड कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। चंद्रशिखा जी, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? और हाईकोर्ट ने जो स्पीकर को इस मामले पर फैसला लेने के लिए 30 अप्रैल तक का जो है वो समय दिया है, क्या इससे हरियाणा सरकार की जो स्थिरता है उस पर सवालिया निशान जो है वो लग गया है? देखिए, ऐसे किसी भी प्रावधान के बाद ये निश्चित रूप से ये बड़ी स्पष्ट बात हो जाती है कि सरकार की जो मुद्रा है वो सफाई की आ जाती है। सरकार एक प्रकार से अपने आप को एक सफाई मुद्रा में पाती है और ये जो है एक बड़ी विकट स्थिति है। और सबसे बड़ी जो तकलीफ बात है कि हरियाणा में ये जो विधायिका का जो सवाल है, विधायिका का जो आचरण है, ये बड़े लंबे अरसे से उसका एक लंबा इतिहास रहा है और कई बार वो विवादों में विधायिका गिरी है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा की विधायिका का ये दायित्व है कि वो अपनी जो सम्मान रेखा है, अपनी मर्यादाएं हैं, उनको बहाल करे। मुझे वो दुष्यंत की एक शेर भी याद आ जाता है कि वो अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं कि आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। तो ये जो मर्यादाओं का प्रश्न है, ये विधायिका के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी, महत्वपूर्ण है कि अपनी जो गौरव है उसको बहाल किया जाए। और ये बड़ी विकट स्थिति है कि ये जो जितने भी ये फ्रेजेस, मुहावरे हरियाणा की सिर्फ संदर्भ में नहीं बल्कि राष्ट्रीय संदर्भ में जितने भी मुहावरे पैदा हुए विधायिका के बारे में, कभी भारत दर्शन की बात आई और कभी आया राम गया राम की बात आई और उससे पहले कुछ और भी मुहावरे प्रकाश में आए। पूरी एक विधायक मंडल का ही जो अपना दल बदल हुआ। तो ऐसी जो ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है, इनसे उबरना हरियाणा की विधायिका के लिए बहुत। चंद्रशिखा जी, जो जैन साहब ने कहा जी कि ये सिर्फ हाउस अटेंड कर सकते हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये वोटिंग राइट नहीं है इनकी, ये शायद इनकी इंटरप्रिटेशन है, जजमेंट में ये नहीं लिखा है। जी। आपकी क्या राय है कि इनकी वोटिंग राइट वापस ले ली गई है? देखिए, वो इसका अपेरेंटली इसका जो प्रभाव है यही, जब वो सिर्फ अटेंड कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति पर एक शर्त लगाते हैं कि वो सिर्फ अटेंड कर सकते हैं, तो सिर्फ अटेंड कर सकने की जो भी व्याख्या हो उसमें स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वो किसी भी निर्णायक स्थिति में किसी भी निर्णय में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये एक, वैसे भी मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से भी जब ऐसी स्थिति आती है तो उनको स्वयं ही किसी भी प्रकार की वोटिंग से या किसी प्रश्न पर अपनी राय देने से तब तक परहेज करना चाहिए जब तक इस याचिका के बारे में अंतिम फैसला नहीं हो जाता। आप कोर्ट के फैसले को, डिफेक्शंस को रोकने के लिए एक कड़े कदम के रूप में भी देख सकते हैं इसको, इस फैसले को? नहीं, ये उस दिशा में भी एक कड़ा कदम है। और मैं समझता हूं कि जब कई बार ऐसा आभास मिलता है कि विधानसभा अध्यक्ष या एक वो भी संवैधानिक पद है, अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में न्यायपालिका को फिर से दखल देना पड़ता है। उस परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाना चाहिए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो संवैधानिक जो प्रमुख हैं किसी भी संस्था के, उनको भी अपने दायित्वों का समय पर पालन करना चाहिए। ये एक संदेश भी है। जी सत्यपाल जी, ये जो 5 एमएलए हैं, ये कांग्रेस को बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं, पर क्या आप मानते हैं कि इनके पास एक दूसरा विकल्प भी है एचजेसी में वापस जाने का? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक तो समर्थन का ताल्लुक है
वो तो कोई भी व्यक्ति भले वो सदस्य हो या ना हो, डिस्क्वालीफाइड हो या क्वालिफाइड हो, वो किसी भी सरकार को समर्थन दे सकता है, वापस कर सकता है। लेकिन जब तक उसका विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो समर्थन अर्थहीन हो जाता है जी। वो काउंट नहीं होगा। समर्थन देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, कोई भी इंडिपेंडेंट समर्थन दे सकता है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये जो आज निर्णय आ गया है, इस निर्णय के बाद जो, जैसा आपने पहले भी प्रश्न किया, ये जो दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, उसको बहुत वजन मिलता है, उसको बहुत ताकत मिलती है। कल तक क्या होता था, जैसे तिरखा जी ने कहा, ये आयाराम गयाराम भी हरियाणा से ही शुरू हुआ था। मैं 10वीं का छात्र था 1969 में, मेरे को याद है, गयाराम नाम के एक विधायक थे जिन्होंने दिन में 9 बार पार्टी बदली थी, सुबह से शाम तक। और यशवंतराव बलवंतराव चौहान हिंदुस्तान के गृह मंत्री थे, उन्होंने संसद में उनके लिए कहा था कि वहां कोई आयाराम गयाराम है। तो ये एक जो कलंक लग रहा है विधायिका पर, इससे छुट्टी देने का समय आ गया है जी। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं, जब संसद में यह बिल आया था सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था, कांग्रेस ने भी, लेफ्ट ने भी, बीजेपी ने भी, और सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था। उसके बावजूद भी दाएं बाएं करके इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, उनके सामने में लगातार जिस दिन से यह पिटीशन दायर की है, मैं उनकी तरफ पेश हो रहा हूं। आप जजमेंट में जजों ने लिखा है, कुलदीप, इसको डिले करने के लिए सवाल पूछा जा रहा है, आप किस स्कूल में पढ़ते थे, अब जब क्लास से आ जाते थे तो कहां बैठते थे। But Jain sir, the court could have gone the whole house. They could have actually disqualified them for all practical purposes. मैंने कोर्ट से यही निवेदन किया था कि जैसे राजेंद्र सिंह राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई करे, अयोग्य घोषित कर दे, क्योंकि उनका एक ही दाव था, एक ही डिफेंस थी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया। मैंने बहस के दौरान उनको कहा कि जिस पार्टी के विलय की बात कर रहे हैं, अभी एक उपचुनाव में उसका सांसद जीत गया लोकसभा के लिए कुलदीप बिश्नोई, दूसरे उपचुनाव में उनका एक विधायक जीत गया आदमपुर से। तो जिस पार्टी का विलय की बात कर रहे हो उसको इलेक्शन कमीशन भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो उपचुनाव भी जीत गया है, और जिस कांग्रेस में विलय की बात आप कर रहे थे उसकी जमानत जब्त हो गई है। तो जब विलय हुआ ही नहीं है और हाईकोर्ट ने लगभग जब स्पीकर के ऑर्डर को स्टे किया है, तो प्राइम शाही हाईकोर्ट को लगा है कि कोई विलय नहीं हुआ, और उन्होंने लिखा भी है कि प्राइम शाही इट फॉल्स डाउन। अच्छा होता अगर हाईकोर्ट खुद ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देता, पर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक जुडिशियल प्रोप्राइटी को ध्यान में रखते हुए, संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फॉर्मल ऑर्डर पास करने से गुरेज करते हुए, they have not exercised the power of judicial review completely. उन्होंने एक मतलब अंतिम ऑर्डर पास करने की बजाय सारी स्थितियां, दे हैव टाइड डाउन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर, और उसके अब स्पीकर के पास, कोई भी स्पीकर अगर ऑनेस्टली एज पर लॉ डिसाइड करेगा, इन पांचों को अयोग्य घोषित करने के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। सत्यपाल जी, अब हमारा ब्रेक लेने का समय हो गया है। आप स्टूडियो में आए, चंद्रशिखा जी आप भी स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, टू स्टे ट्यून्ड।